Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss very important aspect of Indian and world economy. Fed increased the interest rates. The next question comes, what is its impact on Indian economy, world economy, and whether there will be further increase in interest rate in coming days. Now, if we look at the US situation, US is facing 40-year high inflation. And once inflation rate is high, the tool available to tame the inflation is increase in interest rates. As far as economic tools are concerned, the central banks are left with no other option other than to make the money costly. And once you make the money costly, it directly impacts the growth and economy. That means the purpose of making the money costly is to reduce the demand, and the moment demand reduces, the prices start falling. That is the basic fundamental theory of economics. Now, US is major player as far as world economy is concerned. Anything that happens in US has direct or indirect bearing on other countries. Now, if we look at India, India is also facing very high inflation of last 30 years. As for RBI commentary, India may have an inflation which is highest in last 3 to 4 decades, that is 30 to 40 years. That means most of you might not have seen such an inflation in your life because most of you are aged less than 40 years. So if you have to face an unprecedented inflation, it creates hue and cry and it affects the purchasing power of common man. So the immediate task before any central bank is to tame the inflation. May it be at the cost of growth. But in case of India, we are already struggling with growth. Due to COVID situation, the last 2 years lost and the growth rate is still not reached the level of 2019. And if at this time some steps are taken to restrict the growth, it can be fatal for economy. And that's why the role of Reserve Bank of India during this period is very, very critical. The path before RBI is very difficult to travel. On one side, RBI has to manage the inflation. On the other side, they have to allow growth to happen. Under such circumstances, when India is highly dependent on imported crude oil, and the crude oil is hovering around $100 per barrel, it has made the task of RBI more difficult. And that's why RBI made an extraordinary attempt by raising the interest rate by 0.40% day before yesterday. Now the question comes, whether this is the final interest rate hike or more interest rate hike will be seen. If we look at the Fed rate, the Fed has clearly indicated that they will raise at least 2 to 3% interest rate from here on. So if in USA interest rate rises by 2 to 3 percentage points, not points, 2 to 3%, India cannot be left behind. So India has to increase the interest rate at least by 2% or 3%. And this increase is just 0.40. So in India, the loans are going to be costly. In India has to follow the interest cycle of world, because if interest rates are rising in US, they directly impact the investments in India. Because if India offers lesser interest rate than other counter countries, the money will not flow to India
there will be outflow of money from India, can cause bigger damage, that the price of dollar can rise like anything and the foreign exchange reserves can also shrink, as it is happening for last 12 weeks. Every week Indian foreign exchange reserves are declining. The FIIs are mainly withdrawing the money from the country, and that is affecting the interest rates, the yields on bonds, as well as stock exchange. Stock markets will continue to remain under pressure in coming days due to this change scenario, suddenly due to action by Fed. So the impact of Fed rate, interest rate, will definitely be seen in India. India is now going towards high interest rate regime again, and we will find interest rate rising again and again with a short span, and RBI wants to follow a path of interest rate rise that will be slow and steady, but there is a definite indication that interest rates will be high from here on. Whether this will be able to tame the inflation or not, only time will tell, because there are two risks in inflation. One is demand side, another is supply side. Supply is also shrinking, demand is still not come down, so risk remains. So Fed has an impact on India. Any rise in US in interest rate will be accompanied by interest rate in India. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, ये आज का हमारा प्रश्न है. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूएस में फेड को इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना पड़ा. फेड को इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाना पड़ा कि यूएस के अंदर 40 साल की अधिकतम इन्फ्लेशन है इस समय, और इकोनॉमी में एक ही टूल है इन्फ्लेशन को टेम करने का, कि हम पैसे को महंगा कर दें. पैसे को महंगा करने का मतलब ये है कि जो लोन आपको उधार में मिल रहा है उस पे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो ये माना जाता है कि उधार के पैसे की डिमांड घट जाती है, और जब उधार के पैसे की डिमांड घट जाती है तो डिमांड घट जाएगी गुड्स की, और जब डिमांड गुड्स की घट जाएगी तो कीमतें नीचे आना शुरू होगी. ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है. अब इसके अंतर्गत जब ऐसा किया जाता है तो ये माना जाता है कि सीधा असर क्या पड़ता है, ग्रोथ पे. जब आप डिमांड को घटा रहे हैं, डेलिबरेटली घटा रहे हैं, तो नेचुरल है कि इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन आल्सो. तो इसलिए जब भी ये टूल अपनाया जाता है तो ग्रोथ पे असर डालता है. अब भारत पे इसका क्या असर है. मान लो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ गया, और उन्होंने अभी इंडिकेशन किया है कि 2 से 3% और बढ़ेगा. तो नेचुरल है, जो इन्वेस्टर है जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, जब अगर उसको हायर इंटरेस्ट रेट यूएस में मिलेगा तो वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और इंडिया को पैसे की ज़रूरत है. अगर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा या इंडिया से पैसा आउटफ्लो होना शुरू हो गया तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो घट जाएगा, क्योंकि जो ट्रेड में तो हम डिफिसिट ही हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है यही हमें बचाए हुए है. तो अगर इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो जाती है और ट्रेड में हम ऑलरेडी डिफिसिट हैं, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी लो हो सकते हैं, जैसा 12 हफ्ते से लगातार हो रहा है, गिर रहा है. तो एक अलार्मिंग सिचुएशन पे भी पहुंच सकता है, अभी नहीं पहुंचा है. तो इसीलिए प्री एक्टिव स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं, और भारत को भी इंटरेस्ट रेट उन्हीं लेवल्स पे ले जाना पड़ेगा जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए वो अट्रैक्टिव रहे. तो ये भी एक कारण है कि इंटरेस्ट रेट भारत के अंदर बढ़ेंगे. जैसे जैसे फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा. एक ये कारण है. दूसरा मुख्य कारण क्या है कि भारत में भी जो इन्फ्लेशन है इस समय 30 से 40 साल, 3 to 4 डिकेड जो आरबीआई ने कहा है, उसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की संभावना है. ऑलरेडी हाई है इन्फ्लेशन, मगर अभी इससे भी बढ़ने की संभावना है. इसका अर्थ यह है कि आप में से अधिकांश लोग 40 साल से कम हैं, तो आपने तो वो इन्फ्लेशन देखी ही नहीं है. तो भारत ऐसी तरफ बढ़ रहा है जहां ऐसी इन्फ्लेशन होगी जो काफ़ी जनरेशन ने देखी नहीं है.
तो ये एक भारत सरकार और आरबीआई के लिए चुनौती है कि इस इन्फ्लेशन को कैसे गिराया जाए, क्योंकि यदि अब नॉर्मली हाई इन्फ्लेशन रहती है तो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुश्किल हो जाएगी। और इन्फ्लेशन गिराने के लिए एक तरीका आरबीआई के पास ये है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। मगर इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से नुकसान क्या होता है? ग्रोथ किल होती है। और भारत की स्थिति पहले ही इसमें विकट है, क्योंकि 2019 की स्थिति अभी तक रिट्रीव नहीं हुई है। 2020 के अंदर आपका कोविड आ गया, 21 में कोविड रहा, तो उस दौरान जो ग्रोथ रेट है वो पहले ही लो है। तो यदि हम ग्रोथ को डेलिबरेटली भी किल करते हैं और पहले ही लो है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। और इसीलिए आरबीआई के लिए ये चिंता का विषय है। जहां उसको एक तरफ इन्फ्लेशन को टेम करना है, मींस ग्रोथ को गिरा के ही वो कर सकते हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ को बनाए भी रखना है और फॉरेन करेंसी कंट्री में आती रहे, ये भी मैनेज करना है। तो इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट के साथ अलाइन होंगे ही, और इसीलिए अचानक आरबीआई को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग करके 40 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। तो क्या ये अंतिम इंटरेस्ट रेट हाइक है? नहीं। अगर यूएस में 2 से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं आने वाले वक्त के अंदर, जैसा कि वहाँ पर कहा गया है, तो भारत में भी 2 से 3% इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ेंगे। और ये सब उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जिन्होंने उधार लिया हुआ है। डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डिपॉजिटर को तो हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अभी तक दे वर फीलिंग दी हीट। इंटरेस्ट रेट जब गिर रहा था डिपॉजिटर्स को नुकसान हो रहा था। अब दोबारा उनका एक अच्छा पीरियड आने वाला है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो दे विल गेट मोर इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग्स। पर जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपके क्रेडिट के थ्रू इकोनॉमी प्रोपेल होती है, तो जो उधार लेने वाला है, अगर उसकी उधार देने की क्षमता ही नहीं है तो नेचुरल है वो उधार नहीं लेगा। जब उधार नहीं लेगा तो गुड्स की सेल नहीं होगी, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता ही है उसका। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी हाउसिंग लोन लिया हुआ है या कार लोन लिया हुआ है, उनके लिए भी ये नुकसानदायक है। या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत हैवी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, हैवी लोन लेके काम कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगी। और इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आने वाला टाइम अनिश्चितता का है, अनसर्टन है, उसमें उतार चढ़ाव होंगे। और इसीलिए आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में चल रहा है। इसी प्रकार इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज होने में अभी टाइम लगेगा, तो बॉन्ड मार्केट भी अनस्टेबल रहेगी। उसी हिसाब से जो रुपए की कीमत है, लगभग ऑल टाइम हाई डॉलर की कीमत हो चुकी है और रुपए की कीमत ऑल टाइम लो के आसपास है। 76 रुपये 68 पैसे के करीब इस समय चल रही है। 77 रुपये कुछ पैसे ऑल टाइम हाई है डॉलर का और ऑल टाइम लो है रुपए का। ये भी ब्रीच हो सकता है। तो अब क्रूड प्राइस भी ज़्यादा है और उधर से एडिबल ऑयल का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया इंडोनेशिया ने, उसमें भी कीमतें बढ़ने की आशंका है। तो ये सारी स्थितियां चिंतित करने वाली हैं और इसीलिए आरबीआई को एक ग्रेजुएटेड मैनर के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। आरबीआई एकदम शॉक नहीं देना चाहती, तो उसने एकदम नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, पर ऐसा माना जा रहा है कि थोड़े थोड़े वक्त के बाद ये इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ेंगे और 2 से 3% इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डेफिनेटली इंडिया पे असर होगा, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं तो आउटफ्लो ऑफ मनी हो जाएगा और आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया इस स्टेज के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेड डिफिसिट में, और ट्रेड डिफिसिट भी ऑल टाइम हाई होता जा रहा है, क्योंकि क्रूड की कीमत गिरने को नहीं आ रही है। तो ट्रेड डिफिसिट इतना हाई, और उसको कहाँ से कंपनसेट कर रहे हैं कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। अगर वो भी इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती तो नेचुरल है डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं गिरते जाएंगे, और जब जब एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते हैं फॉरेन करेंसी के, आपकी करेंसी भी वीक होती चली जाएगी, और जिसका डोमेस्टिक कंज्यूमर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपोर्ट आपका है क्रूड का, जिसका 80% से अधिक कंजम्पशन
आप इंपोर्ट के जरिए ही कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।